वहाँ पर समझ में आया कि जब हम कभी पॉलिसीज और ये सब लेके और कुछ काम करने जाते हैं ना, अगर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, फिर देन there is failure. You have worked with most of the development areas and Yeah. everything. And जब से हमने COVID के time में देखा, CSR has become one of the most important topics. Right. But also on the other hand, CSR is being misused by the companies. Right. So what's your take on that? Coming said, you belong from a political background. Yeah. First of all, most basic, most common question, nepotism पे आते हैं. Yes. आपका क्या take है? अच्छा, जब हमारा देश 100 साल अपना कंप्लीट करेगा, अमृत काल में जब जाएगा, तब आप देखना मोदी जी ने जो किया है उसके चेंजेस आप देखेंगे। और भारत जो आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि हम अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, वर्ल्ड में फास्टेस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम। लोग कहते हैं सबके पास एक कहानी होती है, पर सुनता कौन है? Well, I do, and if you're here, maybe you do too. Welcome to another episode of Charcha with Tavisha. Today's guest is a woman who did not confine law and policy just to boardrooms and textbook. She took it to the villages, the streets, and to the girls whose voices are often left unheard. Educated in Delhi and London, Ms. Upasana Singh is a lawyer, a public policy practitioner, and a grassroots change maker who has worked across TB awareness, cervical cancer protection, digital literacy, and rural libraries, and many more, touching the hearts of various girls and women. We welcome her today on Charcha with Tavisha. We welcome you, ma'am, on today's episode of Charcha with Tavisha. Thank you, Tavisha. Thank you. So before we begin with the segment, could you give us a small introduction about yourself? So Tavisha, I am from Meerut, Uttar Pradesh. I have done my schooling from there only, and afterwards I did my college from DU, and then my masters from UK, Nottingham University. Then I briefly worked there, and then I came back here again, and I did my law degree from Delhi University. That's how my initial years looks like. And after that, I worked in NGO sector, public sector, and many more things, and that I think we will talk about it later on. But as a person, I would just say that I'm a very, very simple person who loves to have dreams and wants to do something to the society that can change the definition of women empowerment. And women empowerment not in just the definition that we use every day, but something in real. The more real life, the more impactful real. definition. Yes. Fair enough. Yeah. So as you mentioned that you've studied from UK and then Delhi, most people use it to build a career because UK में इतनी opportunities you're getting, but you use it to build a cause. So what's the story behind? Tavisha, exposure. So I come from a very small town, okay? Meerut में जब हम पढ़ रहे थे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि आना, और उसके बाद फिर लंदन जाना और एक उससे बड़ा स्केल था। लेकिन मैं स्कूल से ही बहुत क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। आई थिंक आई न्यू मुझे ग्रेजुएशन के बाद कैसे, सो आई वांटेड टू डू सिविल सर्विसेज, सो सिविल सर्विसेज करने हैं पहले, और उसके बाद पॉलिटिक्स में एंटर होना है। अब पॉलिटिक्स में क्यों एंटर होना है? क्योंकि I have only seen the environment because my mother comes from a BJP party. तो मैंने पॉलिटिकल सीन देखा, बहुत संग देखा है, तो पार्टी को हमेशा इतने करीब से देखा, मुझे लगा यार ये ऐसी चीज़ है जो बचपन से मुझे लगता था कि रियल इम्पैक्ट ला सकती है। तो मुझे हमेशा वही करना था। मुझे इन बिटवीन जो चीज़ें थी वो सिर्फ लर्निंग के लिए करनी थी या अपने समझने के लिए, लोगों के लिए करनी थी। But what really helped me is the exposure. When I was studying in UK, the structure there, education structure was so different. The way they were, conducting their lives. यहाँ तो 16 साल के बच्चे को घर से निकलना ही नहीं देते हैं। वहाँ पर 16-year-old was doing like part time also, was studying also. सब अपना कुछ ना कुछ पार्ट करने लगते हैं लाइफ में। They become independent very early, तो मेरे लिए तो वो बहुत लाइफ चेंजिंग वो था। एंड आई वाज जस्ट 18 व्हेन आई वेंट देयर। सो 18 साल में जब मुझे भेज दिया, और एक्चुअली अकेले भेज दिया था, तो कि जाके खुद से रेंट करना है, खुद देख के, खुद से वो छोटी छोटी चीज़ें ना, इलेक्ट्रिसिटी का खुद से नाम एनरोल कराना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, टैक्सेस वो करने हैं, और अगर हमें पार्ट टाइम जॉब करना है तो उसको कैसे वो करना है, स्टूडेंट आवर्स कितने होते हैं,
लाइब्रेरी यूज करना यार, एक ये मेरे लिए एक बहुत मेजर शिफ्ट था. आई डोंट नो इफ इट इज न्यू नाउ ऑल्सो, बट यहाँ पर जो एजुकेशन, आई एम सॉरी बट एजुकेशन जो है बहुत ट्रेडिशनल मेथड के साथ Yes. चलती है. सो दे फॉलो जस्ट बुक मेथड. There you have to go and research your topics, you have to write assignments on it. आपके पास practical knowledge बहुत आ जाती है, and then you have a mentor. ये मेरे लिए बहुत नए नए कॉन्सेप्ट थे, तो आई थिंक उससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है. और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग मेरे लिए. I agree. I think the education outside India, they focus more on the practical knowledge. Yes, and that Yeah. helps building your own personal self a lot. Agreed. This Yeah. part-time jobs you talked about, they're very respectful there. Yes. Like students are going and earning. अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि हमें जाके मैकडोनल्ड्स में काम करना कोई है, मानेगा ही नहीं. कोई नहीं एंड वहां पर ये डिस्पैरिटी है ही नहीं. वहां Agreed. पर हर किसी को उसी तरीके से इज्जत दी जाती है. एवरी Agreed. वर्क इज गुड. Hmm. और आप बल्कि उसको अच्छा मानते हैं. दैट Yes. यू टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन Yes. थिंग्स, और आप अपनी चीजें अपने चाहे पर्सनल एक्सपेंसेस ही निकाल पा रहे हैं, बट आप कुछ कर रहे हैं. सो दैट चेंज्ड अ होल लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर मी. आप 18 साल की उम्र में जब ये सब चीजें सीख लेते हो ना, तो आपका जीने का नजरिया बहुत Like, बदल जाता You है. become very responsible and accountable. Yes, You're not I didn't know how dependent. to cook by that time. Hmm. Literally, I did everything and I loved it. मतलब सुबह अपना boxes पैक करके जाना और पूरे दिन वो करना, and then अपनी A to Z सारी चीजें करना. And in between that, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको assignments भी करने हैं. Also, at 18 साल की उम्र में आपको फ्रेंडशिप्स भी निभानी है. Very true. तो Very true. सब कुछ करना है. Very true. So I think I enjoyed it. And You're that, an all-rounder in life. yes, and that shaped me who I am today. That played a major role in my life. It is true. It is very true. That's one thing Indian education should change about themselves. Yes, तो मेरे दिमाग में ना ये नहीं था कि लंदन में जाके अरे अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हो जाती हैं और ऐसी हो जाती हैं. अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ भी कमी नहीं है कभी भी करने की. इट्स जस्ट आपको करना क्या है. और मैं बहुत क्लियर थी मुझे क्या करना है. मुझे ग्राउंड पे काम करना था और यहाँ के लोगों के लिए काम करना था. आई केम बैक. But as you mentioned that you were very clear from the beginning कि आपको क्या करना है. Yes. But there was a version of you that failed, that जो आप नहीं achieve कर पाए. Of course. So I wanted to prepare for UPSC. Okay. So I did. लेकिन वहाँ पर भी I think मैं अपने आप को ना बहुत डेडलाइंस दे के रखती हूँ. तो मैं जब UPSC की तैयारी कर रही थी, I gave myself 2 years. Okay. कि 2 साल में हो गया तो ठीक है, but in these 2 years I will give my 100%. मैं कुछ और नहीं सोचूंगी, लेकिन प्लान भी हमेशा दिमाग में रखूंगी. और 2 साल के बाद तीसरा साल में नहीं जाऊंगी. आई थिंक आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबडी, यार सब लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई तो आईएएस आईपीएस आईआरएस नहीं बन रहा है ना. तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको जरूर एक टाइमलाइन अपने आप को देना चाहिए. आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग देयर, नॉट वेस्टिंग, आई वुड नॉट से वेस्ट बिकॉज यू आर स्टडिंग ओनली, but giving those very crucial years of your life in just preparing something that might not work. So you should have plan B कि आपके करियर में और चीजें आप क्या कर सकते हो. तो मुझे लगता है वो फेलियर नहीं है मेरे लिए. आई वुड नॉट call it as a failure for me. I would just say that it was a learning curve. And I think उससे मुझे पता चला you should always have plan B and a solid plan B. और शायद उससे ऊपर. तो मोटिव तो लोगों को सर्व करना ही था ना, पर उसके लिए अब मैं डीएम बनूं कि नहीं बनूं, मैं ग्रास रूट पे जाके तो काम कर ही सकती हूँ. एंड देयर कम्स द रोल ऑफ पॉलिसी मेकर, अ पॉलिटिशियन, और जो उसके बाद बनना ही था मुझे. सो आई थिंक चेंज हुआ है रोल का, लेकिन फेलियर नहीं है. बहुत पढ़ाई की है उस टाइम पे, और वो पढ़ाई से आप बहुत सीखते हो. मैं तो सबको बोलती हूँ यार, ग्रेजुएशन में एक कोर्स, चाहे वो आप 4-5 महीने का हो, जो यूपीएससी की तैयारी में हम पढ़ते हैं ना, वो जरूर करना चाहिए. पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं, इतना चीजें समझ लेते हैं ना, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होती कहीं ना कहीं. तो ग्रेजुएशन में मुझे लगता है एक सेमेस्टर वो होना चाहिए. हाँ, that is actually very true. Yeah. It's more about क्या practically कितना चीजें सीख रहे हैं. Right. Very true. Yeah. बहुत ज्यादा ही theory based हो जाता है सब चीजें. True. What is that one common question that you have been getting in this field? In NGO? In NGO. लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर ना आपका ये करियर नहीं है. मतलब
सो बड़ा कॉमन सवाल होता है, अच्छा ये कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं आप? The name says it, non-profit हाँ, नॉन organization. प्रॉफिट, तो इसके साथ और क्या है आपका काम? तो लोग ना इसको फुल टाइम नहीं करना, आई थिंक उनके दिमाग में ये सेट होता है कि इसके बाद क्या है, या फिर इससे आपको क्या मिल रहा है, मतलब आपका पर्सनल गेन्स क्या है। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ यार कि हमेशा हर चीज को मॉनेटरी वैल्यूज में आप नहीं तोल सकते हैं। सम थिंग्स आर जस्ट फॉर यू, कि आप के गोल्स क्या हैं, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। मेरे लिए तो मैंने जो अपनी घर की जर्नी देखी है, मेरी मदर मेरे फादर की जर्नी देखी है, मुझे लगता है इफ आई गिव बैक टू द सोसाइटी इवन 1%, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Fair. But also, again, the common question will come up Yeah. from my side also right now. How do you see your personal gain from it? So I see a lot of satisfaction in me. I mean, आप मुझे उसमें बोल सकते हैं कि अरे ये तो बहुत मतलब डिफाइन नहीं कर सकते क्या पर्सनल गेन है। तो जब आप जाके, फिर मैं एक स्टोरी के उससे बताती हूँ। तो हम लोगों ने कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे। तो जब वो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे, वी वर डूइंग एग्जामिनेशंस आल्सो, सो एंड रूरल, जहाँ पर लोगों को पता भी नहीं होता, और लिटरली वहाँ पर कैंसर एक ऐसा वर्ड है ना जो सुन के एकदम डर जाते हैं, नहीं नहीं हम जांच नहीं कराएंगे, व्हाट इफ यू नो द आउटकम इज समथिंग विच वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो बहुत औरतें वहाँ डरती थी कि ऐसे नहीं है। तो हमने बड़ा बैठ के उनके साथ आराम से बात की कि अरे नहीं ऐसे नहीं होता है दीदी, ऐसा नहीं होता है आंटी, ऐसे नहीं होता है, और पता होना चाहिए। एक गांव में 2 केसेस निकले सर्वाइकल कैंसर के, और अर्ली डिटेक्शन। तो जब आप अर्ली उसको कर देते हो, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है जहाँ प्रिवेंशन हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर आपको अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाता है तो बहुत चीजें आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो जब वो हुआ, हम लोगों ने उनको बताया और उनका फिर इलाज भी कराया। तो जब आप ऐसे स्टोरीज देखते हैं ना कि आपकी वजह से 2 लोग आज अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहे हैं, उसको मुझे नहीं पता कि मैं उसे वर्ड्स में क्या डिफाइन करूं, बट मतलब मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, हो जाती है वो ऐसे कि अरे मैंने कुछ कर लिया जीवन में शायद। सो आई थिंक वही है कि दैट कीप्स मी मूविंग, दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग। ये, और ये सिर्फ एक स्टोरी है, आई हैव मल्टीपल स्टोरीज लाइक दैट। Okay, very impactful, very inspiring. कि from every story आप कुछ सीख भी रहे हो। You're learning how to live your यार life. the moment you step out ना on ground, you will learn. Agreed. आज आपसे मिल रही हूँ तो आपसे भी मिलके मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। So if you're just going and having normal conversation also, you know, leave out things कि मुझे जाके कुछ करना ही है उसके लिए, I will learn something from, you know, people and changes situations and everything. But also looking from the positive aspect, तो we are learning. Yeah. Negative aspect भी बहुत होते हैं कि ये सब चीजें आपको mentally भी कितना आपको impact करती है। बहुत बहुत। So वो how do तविशा, you- मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कोई नहीं सोचता है। Yeah. कि उनको लगता है कि अरे एनजीओ के काम वाले आ रहे हैं, करने के लिए कुछ करेंगे और चले जाएंगे, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट पीपल हु रियली वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप जाके ऐसी सिचुएशंस देखते हैं ना, और वो भी किन कारणों की वजह से, कि अवेयरनेस नहीं है, और दे आर नॉट एजुकेटेड, और उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, है ना, उसके अभाव में जब ये चीजें होती है ना, यू फील सो सैड, कि सैड ऑल्सो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो एट दैट टाइम, कि अरे कितना हमारे पास है ना प्रिविलेज। हाँ, कि कितना प्रिविलेज है यार, कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, अरे ये भी अच्छा है, अरे वो भी अच्छा है, ऐसे। तो मैं सैड स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, आई वुड नॉट टच मैनी, बट एक बारी हम लोग दिल्ली में नॉर्मल सेलिब्रेशन के गए थे, और उसमें हम लोग वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी पैड्स। तो एक पुल के नीचे आपने देखा होगा, ये मेहरचंद मार्केट के पास नीचे बड़े सारे लोग टेंट पेंट लगा के रहते हैं, तो वहां पर वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड सैनिटरी पैड्स एंड स्टफ। अ लेडी केम एंड शी इज लाइक, दीदी पैड्स तो दे रहे हो, लेकिन पैड्स लगाने के लिए वी डोंट हैव पैंटी, तो वो तो दे दो, मतलब as basic as, you know, undergarment,
सो जो कितना बेसिक है कि वो भी नहीं है यहाँ पर, और अगर एक है तो दूसरा चेंज करने के लिए नहीं है, तो आप हाइजीन के बारे में बात ही कैसे कर रहे हो। और वो ऐसा था मेरे जैसे मुंह पे तमाचा, मतलब लिटरली कि अरे हम तो बहुत सरफेस पे काम कर रहे हैं ना, जाके पैड दे दी, दीदी यूज कर लेना इसको, है ना, और 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, उसके बाद क्या की बेसिक नेसेसिटीज है कि है क्या। तो मुझे वहां पर समझ में आया कि जब हम कभी पॉलिसीज और ये सब लेके और कुछ काम करने जाते हैं ना, अगर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो रहा है फिर वो फेल है। अगर वो 2 महीने के बाद फिर से कपड़ा यूज कर रही है, और अगर वो शी इज नॉट एबल टू डू दोज प्रैक्टिसेस, देन देयर इज अ फेलियर इन अस, इन द सिस्टम। जहाँ पर वो बेसिक चीजें हैं उसको अगर 10 रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है, आजकल तो डिस्पेंसरीज पे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज पे मिलता है ना बहुत सस्ता, लेकिन उन्हें एक तो उन्हें पता नहीं है कि नॉलेज नहीं है कि हमें ये करने से बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। और कि इतना सस्ता है कि हमारी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर महिला हेल्दी रहेगी तभी तो परिवार हेल्दी रहेंगे ना, तो उनको ये भी नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आपके ना, आपको वो चीजें बहुत क्वेश्चंस कर दे देती हैं दिमाग में कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसके बाद है ना कि हैबिट बने। अब हैबिट का रूल हम लोगों के उसमें तो 21 डेज बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो उन लोगों के साथ नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ कुछ जगह 1-1 साल के लिए बोला कि वी विल गिव, जिससे कि 1 साल के बाद जब आप इतने लंबे टाइम के लिए कुछ चीज यूज कर लेंगे ना, तो हैबिचुअल हो जाओगे आप, और फिर आपको उसकी चीजें भी समझ में आएंगी। तो यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सपेक्टिव भी चेंज करते हैं, आपके हाइज एंड लोज भी डिफाइन करते हैं। Fair enough. Mentally, तो we all assume कि NGO का basically काम क्या है, you're going out and helping, that is it. But जब हम genuinely ground work पे जाते हैं and you see the people so close ना, वो बहुत mentally impact करता है। बहुत। Even I went to an old age home recently, and जब वो देखते हैं ना कि the way they are living, and it's heartbreaking. It is heartbreaking. Old age home तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं जाके, मतलब ऐसा कोई विजिट नहीं हुआ जहाँ हम रुक के नहीं आए हैं। और ऐसा एक बार और हुआ। सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, लॉ इंटर्नशिप, आई वेंट टू दिस सुधार गृह, आपको पता होगा ना जब बच्चे रहते हैं जुवेनाइल्स, तो हम लोग जुवेनाइल सेंटर गए, वहां पर बच्चों से बात करेंगे। एंड आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता था मुझे एनजीओ का काम करना है आगे जाके या कुछ भी करना है, दिमाग में यूपीएससी था उस टाइम पे। So I went and met a boy who was just I think 9 year or 10-year-old. I don't remember the exact age, but and he was painting something. वो ऊपर वो बने हुए होते हैं ना बेड्स, बंकर बेड्स, हाँ, तो वो उसमें ऊपर बैठ के वो कर रहा था। And I called him कि अरे क्या कर रहे हो? अरे ये कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आपको कुछ बात करनी है या कुछ ऐसे, कैसा लग रहा है यहाँ पर, कुछ चेंजेस आ रहे हैं? दीदी मेरे घर वाले आएंगे क्या मुझे लेने? भूल तो नहीं गए? वो आए नहीं है मिलने। और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि 10 साल का बच्चा, इतना मासूम अभी, और उसको दिमाग में सिर्फ ये कि मेरे घर वाले भूल तो नहीं गए मुझे, कि कोई आया नहीं है मिलने। ये लोग इतने गरीब तबके से आते हैं कुछ कुछ बच्चे, और कैसे वाले क्राइम्स होते हैं इनकी, चोरी कर लिया या फिर वो ये ना आपस में कुछ, जो इनके सबकी स्टोरी सुन के ये था कि एक बड़े भैया ने हमको सिखा दिया नशा करना, एंड फॉर दैट दे स्टील स्टफ, कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो वहाँ जाके मतलब लिटरली मैं बहुत दिन तक वो इंसिडेंट को निकाल नहीं पाई दिमाग से। वहाँ पर ऐसे बहुत बच्चों की कहानी थी। देयर वाज अ गाय हु वाज अ रेपिस्ट, इतनी छोटी उम्र में। उसको तो फिर उसको सारे बच्चे बुली कर रहे थे वहाँ पर कि अरे इसके पास मत जाओ, इसने ना ऐसे किया है, ऐसे करा है। एक बच्चा था जो जिसके पूरे हाथ पे ना निशान बने हुए थे, पूरी बॉडी पे बेसिकली, एंड उसके हाथ भी ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो रखे थे बिकॉज ऑफ द ड्रग ओवरडोज। इतनी छोटी एज में, आई थिंक वो 14-15 साल का बच्चा होगा, और उस टाइम पे उसने ये सब कर रखा है। और मैं ये देख रही थी यार, सोसाइटी में एक ऐसा तबका है जहाँ पर कितना काम करने की जरूरत है। ये बेचारे जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी को देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है लाइफ में, ये लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं।
Very So true. there is a lot of work that needs to be done in every field. Very true, very true. Yeah. Even when I was interning with DALSA, Yeah. we used to go on village visits. Yeah. If you need any legal aid help, Right. and mostly 90% of the लोगों को चाहिए होता है चाहिए कि होता कहीं है. ऑफिस में काम करे तो एम्प्लॉयर ने कुछ कर दिया, Yeah. एंड इट्स लाइक कि उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं नहीं तो है. They don't at even least know. no, they don't have the knowledge also. Yeah, they don't know, and they don't know what their legal rights are. Yes. So that basic thing is also missing. कि वो जाके करें क्या, पता ही Yeah. नहीं है कि एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं. That becomes the best way to misuse them. क्योंकि Right. पता ही नहीं है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये Of सब. course, Very of course. true. Yeah. Moving to the next topic. Yeah. You have worked with most of the development areas and Yeah. everything. And जब से हमने COVID के टाइम में देखा, CSR has become one of the most important topics. Right. But also on the other hand, CSR is being misused by the companies. Right, So right. what's your take on that? So I think तविशा सबके ना pros and cons होते हैं, सबके. आपको खुद से देखना है कि आपको उसमें से क्या देखना है. So obviously, I mean, I would not say कि लोग CSR का कहीं misuse नहीं कर रहे हैं, लेकिन thanks to our government, like literally thanks to the BJP government, मैं specific कर दूँ कभी किसी को और वो लगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको डिजिटल कर दिया है हर चीज़ को, Yes. और compliances ऐसे कर दिए हैं, you can't really do that misuse anymore. मतलब you have to have all the paperwork sorted, सब चीज़ें आपको करनी है. और जैसे आपने कोविड का एग्जाम्पल दिया, कोविड was such a big example of using the CSR in the right direction. जब हमारे देश हमारा देश क्या पूरा वर्ल्ड ही उस टाइम पे they were going through such crisis. हमारी CSR फंड्स ने जब PM मोदी ने बोला हमारे CSR के लिए, तो लोगों ने आके इतना पैसा दिया और इतनी बड़ी कंट्री को उस चीज से इतने स्मूथली सेल करा दिया कि कोई और कंट्री सोच भी नहीं सकती थी. और सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं, वी हैव I think helped so many countries that time by giving those vaccinations. जहाँ स्टार्टिंग पे हमको PPT किट क्या होता है यही नहीं पता था, हम लोग उसको बाद में ना सिर्फ बना रहे थे, हम लोगों को हेल्प कर रहे थे. तो it all could be there because of these CSR activities only. तो अगर हम उनको राइट डायरेक्शन में यूज करें तो बहुत इम्पैक्ट हो सकता है उसका. बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली देयर आर पीपल, और हमारी आई थिंक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं और बहुत सारे एनजीओज को बंद कराया उस टाइम पे. आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत हजारों एनजीओज बंद हुए because they were not doing the compliances and stuff. Fair enough. Yeah. But what is that one advice you would like to give to the companies towards the CSR? I think एक तो ना अभी बड़े कंपनीज के साथ क्या हो गया है, उन्होंने खुद के अपने एनजीओज बना लिए हैं. सो वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं जैसे भी है. मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद से जब भी वो CSR फंड देते हैं किसी के साथ भी, चाहे वो कितने भी हैं, दे शुड बी इन्वॉल्व इन इट. आई थिंक जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको एक पूरे एक तो फंड्स का भी पता रहता है, ऑब्वियसली वो तो सिर्फ पेपर वर्क नहीं रह जाता, देन यू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. ऑल्सो यू रिलेट टू द कॉज ऑन अ लेवल जो आप ऑफिस में बैठ के नहीं समझ सकते हैं. सो आई थिंक सही एनजीओज को चुने और उनका काम देखें और ग्राउंड पे उनके साथ जाएं, तो उससे आई थिंक बहुत हेल्प होगी सही लोगों को मदद पहुंचने में. बिकॉज बहुत सारे एनजीओज हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन उन लोगों को CSR नहीं मिल पा रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर कंपनीज थोड़ा सा और अपना होराइजन बढ़ाएं तो और हेल्प हो सकता है. Coming said, you belong from a political background. Yeah. First of all, most basic, most common question, nepotism पे आते Yes. हैं. आपका क्या टेक है? अच्छा, तो भाजपा जो है उसको बोला जाता है कि ये नेपोटिज्म के खिलाफ है, और आई टोटली अग्री विद इट कि नेपोटिज्म के खिलाफ है, क्योंकि हमारी पार्टी ना ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है. हमारी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है आज, अभी हम लोग रिसेंटली इतने सारे इलेक्शंस जीते हैं, बंगाल, आसाम, ये जीतने के बाद हर किसी ने, हमारे ऑपोजिशन वालों ने भी यही चीज़ बोली है कि इन लोगों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ऑर्गेनाइजेशन है. उसको कोई एक पर्सन और एक फैमिली नहीं चला रही है, एक हायरार्की होती है ना, और एक हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है.
पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ है, बाकी बोर्ड्स हैं और सारे, और हमारी छोटी से छोटी इकाई तक भी एक सब बने हुए हैं सेगमेंट्स, जिले पे, प्रदेश में, हर जगह पे वी हैव अ बॉडी। बट नेपो किड का ऑब्वियसली थप्पा लग जाता है। आई थिंक उसके ना एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है कि डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड वी आर फेसिंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप हमें मत दो इजी एक्सेस, ठीक है, बट हमें एक्सेस दो। ये हमारे लिए अनफेयर है एज अ सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, कि आप ये बोल दें क्योंकि हमारे पेरेंट्स पॉलिटिकल उसमें रहे हैं या फिर मम्मी एमपी हैं या रहे हैं, जो भी, आप नहीं कर सकते, या वो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप नहीं आ सकते। मुझे लगता है आप हमें और कसौटियों पे उतारें, हमें डबल टेस्ट करें, बट हमें सिर्फ इस चीज़ पे डिनाई नहीं कर दें क्योंकि वी आर समबडीज किड। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर। देखो, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर का बच्चा लॉयर बन सकता है, और सारे प्रोफेशन, तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? और मुझे ऐसा लगता है हम बचपन से देखा है यार, तो हम लोगों को जिस तरीके से पॉलिटिक्स समझ में आती है, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑन पोस्ट ना रहे, बट वी अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ पर डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन, लंच टेबल कॉन्वर्जेशन कुछ और होती ही नहीं थी कभी भी। हमारे यहाँ टीवी पे न्यूज चैनल्स के अलावा कभी कुछ चलता ही नहीं था। तो संग वाले रोज आके मतलब हम लोग उनसे जो चीजें देख रहे थे, उनके साथ रहे हैं, उनकी चीजें, जो विचारधारा है हमारी पार्टी की, उसको जितना हम समझते हैं, मुझे लगता है और लोग भी समझते ही होंगे ऑब्वियसली, तभी इतनी बड़ी पार्टी बनी और जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे खून में है बातें, दैट इज आवर परिवार। तो हम अपने परिवार को समझते हैं, तो हमें परिवार का आगे आने के लिए, उसके लिए लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? दैट इज ऑल आई वुड से। हमें शायद लोग जानते होंगे, इजी एंट्री बोलते हैं लोग कि करते हैं, अरे यू हैव एक्सेस, ओके एक्सेस है, लेकिन एक्सेस के बाद हर दिन हमें प्रूव करना है कि ये एक्सेस हम हमें ये खैरात में नहीं मिला है। Agreed. That's what I was telling, कि if we connect with the family business also, my point is कि our parents worked for it, कि उनके बच्चों को आगे थोड़ा benefit मिले, तो why not we are there कि हम वो use करें, हमारे पेरेंट्स से वर्क हार्ड करा है कि हमें वो चीज मिले, और हम लोग भी वर्क हार्ड करने के लिए तैयार हैं। मैं कहती हूँ जो बच्चे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं, उनको बिल्कुल मत दो एंट्री। लेकिन जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं और ग्राउंड पे एक्टिव हैं और बहुत चीजें करना चाहते हैं, प्लीज उन्हें चांस दीजिए। प्लीज उन पे सिर्फ नेपोटिज्म का थप्पा लगा के उनको डिस्करेज नहीं करा जाए। This is a advice for everyone out there. Yes, please give us the chance. They deserve it. ठीक है. Do you think PM Narendra Modi is the right fit for today's generation? Because हमने 2014 से सिर्फ उनका ही एरा देखा है, but with the current dynamic changes in everyone in the generation, as a generation, a large amount of people are not seeing him as a current fit PM for our India. What's your take? Oh my God, I think right बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, बहुत छोटा शब्द। I have seen a era before 2014, and literally I come from Uttar Pradesh, like I mentioned before also. वहाँ पर गुंडा राज ना सिर्फ सुनने में, अभी सुन रहे हैं लोग, हमने देखा है वहाँ पर लड़कियों को बाहर निकलना, स्कूल के बाहर टीजिंग होना, सिर्फ कास्ट बेस्ड मतलब एक जिसकी पार्टी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो एक क्लैन को बस देते रहो टाइप है ऐसे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बुरा हाल, हेल्थ का इतना बुरा हाल, एजुकेशन का इतना बुरा हाल। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ राइट नहीं है, उनके अलावा इस टाइम पे कोई बेस्ट चॉइस हो ही नहीं सकती। आई थिंक ही इज अ पर्सन, ये समझो भगवान अवतार लेते हैं ना, वो राइट फॉर्म में अवतार लेके आ गए हमारे लिए, हमारी लोगों को सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। आई हैव नॉट सीन अ प्राइम मिनिस्टर जिसने अपनी स्पीच में बोला हो हाइजीन के बारे में। स्वच्छ अभियान इतनी छोटी चीज है,
इतना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आई। मतलब कौन रूरल और उसमें सोच रहा था कि शौचालय होने से लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, नहीं होने से। अरे रेप्स होते थे वहां पर। हमने उत्तर प्रदेश में इतने रेप केसेस सुने हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अंधेरे में या सुबह गई है उसमें। और रेप केसेस अलग, उसके अलावा डर, भय, बहुत सारी चीजें, घर से बाहर जाना, डिग्निटी यार। Very true. मतलब इफ यू डोंट हैव अ सिंपलेस्ट थिंग, यू नो, अ टॉयलेट फॉर योरसेल्फ, आप उससे ज्यादा तो और क्या ही बेसिक उसमें वो करेंगे। तो उन्होंने वो सोचा उस टाइम पे, उज्ज्वला योजना यार। मतलब इतनी सिंपल और इतनी बड़ा इम्पैक्ट उससे आया है गांव में। चूल्हे पे आपको सिर्फ हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा, आपके रिजर्व्स खाली हो रहे हैं, लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है। हेल्थ तो खैर बहुत ही Major बड़ा factor. मेजर फैक्टर था उसके पीछे। आज उससे एक घर में गैस फ्री देने से लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। तो और डिजिटल इंडिया जो उनका पूरा उससे रहा, करप्शन खत्म होना, आज कोई सोच नहीं सकता ये सब करने के लिए। तो आजकल के टाइम मुझे लगता है ही इज अ विजनरी लीडर। तो आज अगर आप, लाइक यू सेड, यूर 21 ईयर ओल्ड, मुझे लगता है जो बच्चा 1 साल का भी है ना, वो उनके लिए भी सोच रहे हैं। वो जब 20 साल के होंगे उनको तब भी फायदा होगा इनकी चीजों से। तो वो उनका उस टाइम का विजन चल रहा है। तो जब हमारा देश 100 साल अपना कंप्लीट करेगा, अमृत काल में जब जाएगा, तब आप देखना मोदी जी ने जो किया है उसके चेंजेस आप देखेंगे। और भारत जो आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि हम अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, वर्ल्ड में फास्टेस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। Fair. या But if to answer the question, if not him, then who? Even if from BJP party. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई वुड नॉट टेक नेम Hmm. बट जैसे नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे भाजपा के फेस, तब हमें समझ में नहीं आता था हु नेक्स्ट, Hmm. बट ही केम और उन्होंने इतनी सब Took चीजें forward करी। it. तो हमारे भाजपा परिवार में ना ऐसे बहुत गद्दावर नेता हैं, बहुत। और उन लोगों की जो ग्राउंड पे पकड़ है, जो उनकी समझ है, वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि हर कोई बंदा आज मोदी की तरह सोच पा रहा है या मोदी जी के विजन को लेके चल पा रहा है। तो देर इज, आई थिंक, मोदी इन एवरीवन राइट नाउ। तो जो भी आएगा मुझे लगता है बहुत अच्छा ही करेगा। What an answer. Wow. Yeah. So, One advice सब लोग लिए जो against वाजपेयी. वो प्रो होने में टाइम ही लगाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे और आप कब तक डिनाई कर सकते हैं ना चीज़ों True. को। तो अगर आपने बिल्कुल मान ही लिया है कि नहीं नहीं हमें मानना ही नहीं है, तो उसका कोई आंसर नहीं है। Agreed. पर लोग जब अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में जब चेंजेस देखेंगे, तो अपने आप मानेंगे ना। Fair enough. आई Very थिंक true. काम मानेगा उनका। Very true. The work speaks its possible. यस। Very true. ये तो है. Even if being a resident of Noida, UP Yeah. itself, हमने भी देखा है. Yeah. Just being 21, हमने भी changes चेंजेस देखी हैं. देखे हैं, राइट। Earlier it used to be कि chain snatching हो रही है चलते चलते, यस, ये आई सब मीन हो रहा है. ये इतना बहुत it was just so common. या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मतलब कंप्लीटली चेंज हो गई है Agreed, उत्तर agreed, प्रदेश agreed. की। या Coming to the end of the podcast, what is that one advice you would like to give to the people or the women who are now about to enter the politics field? ओह ओके। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर ना बहुत झिझक होती है दैट महिला पॉलिटिक्स में आएगी तो बहुत डिफिकल्टीज होती हैं और ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है एक पैर तो बढ़ाओ, बहुत आगे चीज़ें हैं, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और अभी हमारा अनफॉर्चुनेटली वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑपोजिशन की वजह से चला गया है, बट आई हैव फुल फेथ अगेन इन द पार्टी कि वो दोबारा से लाएंगे और उसको हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आधी आबादी है तो आधी रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। अभी तो 33 है, मुझे लगता है 50 मिलनी चाहिए। और आगे बढ़ो, स्काई इज द लिमिट। फियर और ये लोगों की जो सोच कि हम ये करेंगे तो हमें ऐसा जज करेंगे, यू नो, women are being
asked for everything, question for everything Yes. कि how you dress, बाहर कैसे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये वाला प्रोफेशन क्यों, वैसे क्यों, घर पे टाइम तुम कैसे दे रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर रहे हो, बच्चे कौन पाल रहा है, अपने लिए खड़े हो। आई थिंक आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो, बेझिझक करिए, बेझिझक। वेरी वेल सेड। एक पॉलिसी जिस पे आपको really वर्क करना है और यू वांट टू चेंज और डिलीट, व्हाट वुड इट बी? I think I would name two. ओके। So one would be preventive healthcare and education. I think education पे already अभी बड़े सारे changes हुए हैं, but still there's a lot of work needs to be done. But preventive healthcare, there are, अगर हम लोगों ने अपनी basic चीज़ें भी ठीक कर ली ना, उससे हमारी generations ठीक हो सकती हैं। There are health problems like cervical cancer and all, जिसका prevention हो सकता है अगर हम उसको लार्ज स्केल पे अवेयरनेस के थ्रू ही। ये एक चीज़ है, और इसके अलावा बहुत सारी हैं, टीबी हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हाइजीन हो गए, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत सफ़र करती हैं। तो अगर हमारा प्रिवेंशन हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांग होगा तो आई थिंक वी कुड चेंज अ लॉट इन वुमेन हेल्थ केयर। तो हम लोग ना वेट करते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तब हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रिवेंशन करना चाहिए रादर देन फाइंडिंग द सोल्यूशन। वो एक आगे की चीज़ है, लेकिन अपना हेल्थ केयर इतना स्ट्रॉन्ग कर दो फाउंडेशन कि हमको ज़रूरत ही ना पड़े कि इतने मेजर केसेस आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है आजकल कैंसर कैपिटल बन गया है। तो उस चीज़ पे अगर हम लोग पहले ही काम करें, अगर लोगों को बताएं कि अरे अर्ली स्टेजेस पे यू कैन डू particular test or you can do your own physical examination breast cancer के लिए, जैसे हम लोग खुद कर सकते हैं। तो ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी अगर हम लोग सब लोगों को जाके दें तो उससे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और एजुकेशन में मैं बोलूँगी कि अगर लाइक आई सेड कि मेरे को बाहर जाके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, तो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन बुक्स, आई एम नॉट सेइंग बुक्स को गिव अप कर दो, बुक्स तो पढ़ना ज़रूर चाहिए। और आई थिंक आजकल तो लोगों को और भी कि फ़ोन छोड़ के प्लीज़ start reading the books again, but at the same time practical knowledge is very very important. Completely agreed. And using the libraries, मतलब जाके आप उसके बारे में रिसर्च करो जो हमारे में नहीं है। हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, तो आई थिंक उससे ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। ऑल्सो स्किल के बारे में अगर हम पढ़ाएं तो हर चीज़, मुझे लगता है जैसे गाँव के बच्चे हैं, बाकी भी बच्चे हैं, सिर्फ हर चीज़ डॉक्टर इंजीनियर और IAS PCS नहीं हो सकते ना। वी कैन डेवलप अ स्किल इन अ स्टूडेंट ऑल्सो। सो आई थिंक अर्ली स्टेजेस पे हम लोगों को उनको ये बताना चाहिए कि देर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। एक आई थिंक कंसल्टेशन करना चाहिए बच्चों के साथ, करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, और उनको ये स्किल, बिजनेस, ये सब मॉडल्स के बारे में बात करनी चाहिए। I think these are the very critical changes that the policies need to have. Yes, very true. Also, you talked about the book reading. Yeah. As a politician and as a political background, what is it one book you suggest every political person should read? So तविशा, बुक में ना मैं बोलूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए। आई थिंक यूर अ लॉयर, आई एम अ लॉयर टू। मुझे ऐसा लगता है किसी को भी पॉलिटिशियन बनने से पहले और पॉलिटिशियन बनने के बाद भी, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट बुक दे शुड रीड, नॉट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एज अ मॉरल डॉक्यूमेंट। एक्चुअली हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि हमारा लॉ प्रॉमिस क्या कर रहा है, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हम लोगों को कैसे लीगल फ्रेमवर्क में करना है, पॉलिसीज बनाने कैसे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जब तक हमें वो बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, हाउ वुड वी चेंज इट? I think if every politician follows that, then so India would be on the next level. Yes, and I hope, and India will. India will. Yeah. 100%. Yeah. Full faith. Full faith. Yes. Thank you, ma'am, for today being here with us. It was a pleasure talking to you and learning so much from you. Thank you so much, Savisha. Thank you. If you do like the episode, do like, share, and subscribe.